سید زادوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ، عید کی خوشیاں ہیں مرشد ہے ساتھ، خوشیوں کی بھی ہو گئی عید آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سیدوں کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر سید زادے جمع ہو گئے۔ آج کا دن جو ہے عید کے دن سے کم نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لے کر آئیں گے جو کہ سید زادوں کو دگنا دیتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ تشریف لے کر آئیں گے جو سنتے ہیں کہ یہ آل رسول ہیں، ان کی محبت ان کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد تشریف لے کر آنے والے ہیں لاکھوں کروڑ دلوں کی دھڑکن، جنہیں دنیا کہتی ہے شیخ طریقت، شیخ طریقت، اور سب مل کر بولیں مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار۔ آپ لوگ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے، امیر کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب کو پتہ ہے کہ عید رمضان کے بعد آئے گی، لیکن ہماری عید تو آج ہے کہ ہم امیر السنت کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جی مائک۔ آج کا دن میری زندگی میں سب سے اہم دن ہے۔ انشاءاللہ یہ دن جو امیر علیہ سنت آئیں گے تو جو نیت میں کروں گا انشاءاللہ اس پہ قائم رہوں گا۔ پہلی مرتبہ ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں جی ہاں، فرسٹ ٹائم آیا ہوں، اور الحمدللہ میرے گھر میں بھی مدنی چینل چلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دل کے جذبات کیا ہیں؟ پیر صاحب ابھی آئیں گے، کیا سوچ رہے ہیں کہ پیر صاحب آئیں گے، کیا کیفیت کیا ہے؟ وہ ایک تڑپ ہے اور وہ جذبات، مطلب میں زبان سے نہیں بتا سکتا، جذبات ہے میرے، مطلب میرے قابو میں نہیں ہوں۔ یہ عشق کا ایک انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس وقت بڑوں کی بارگاہ میں جایا جائے تو بسا اوقات اتنی محبت ہوتی ہے کہ بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت کل بھی جذبات بھی ان کے ماشاءاللہ یہی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ریحان باپو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے بھی رونق بخشی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ روشنی لینے آئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ ہم سبھی مل کے پڑھیں گے۔ عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سرے حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ہمارے علی رضا بھائی یہ جب آتے ہیں تو ایک اشارہ ہوتا ہے کہ امیر السنت تشریف، ایسا ہی ہے علی رضا بھائی؟ بتا کے تو جائیے۔ ابھی آ رہے ہیں ان قریب۔ ان کا بھی اپنا انداز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام بھائی خوش ہیں، اور عید والا ایک سما ہے کیونکہ ہمارا بھی پروگرام چلے گا عید کے موقع پر۔ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جی جذبات۔ سادات کے محبت کے دعوے دار تو بہت تھے، لیکن وہ محبت اتنی تھی کہ جب اگر سادات جو ہے کہیں بھوک میں پریشان تھا تو اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا،
لیکن یہ وہ مرشد ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے سادات کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں ایسی اجاگر کی کہ ان کے لیے نہ صرف دگنا کیا بلکہ ان کے لیے جو ہے ہر چیز کو راشن تک جو ہے مطلب دے دیا، یہاں تک کہ ان کو جو ہے ان کے بچوں کو بڑھا دیا، ان کے مطلب جو ہے گھروں کو سنبھال دیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 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 جی۔ اور عاشقان رسول، کیا بات ہے بابو شریف۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ 100 سال کی ایسی عبادت جو کہ بغیر ریا کے ہو اس سے بھی بہتر ہے، یعنی خالص عبادت۔ خالص عبادت ہو۔ تو ویسے بھی الحمدللہ عید مسرت خوشی کا موقع ہے، اور پھر امیر سنت کی بارگاہ میں امیر سنت کے ساتھ عید منائیں گے تو یہ ڈبل خوشی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی۔ اور اب باری آ گئی ہے سیدزادوں کی عید جب تک امیر اہل سنت کے ساتھ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہیں عطار۔ امیر اہل سنت کو ہم تمام عاشقان رسول سیدزادوں کی طرف سے عید مبارک، نگران شورا کو بھی عید مبارک، آپ سب کو بھی مائک میں جائے۔ خادم سادات کرام کی طرف سے تمام سادات کرام کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ امیر سنت کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ان کو ہزار ہزار خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، یہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں، یہ مسکراتے رہیں، ہم ان کو دیکھتے رہیں۔ آج ماشاءاللہ سادات اکرام کے ساتھ جو عید کا سلسلہ ہے، ہاں میں یہ تو آتے ان کا بولوں تو پھر اب کیا بولوں یار، یہ سارے اوپر بیٹھے میں نیچے بیٹھوں۔ اور کچھ ایسے عاشقان رسول ہیں وہ سوالات بھی لے کر آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کچھ سوال بھی عرض کریں گے۔ جی سید فرقان بھائی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز سمجھتے ہیں، اور جب سادات انکار کرتے ہیں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے میں سادات کے لیے زکوٰۃ لینے کی ممانعت کی کیا وجہ ہے، وہ بیان کر دیجئے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مال کا میل ہے، سید جو ہے نا یہ میل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے سادات کرام کو منع ہے مال کا میل دینا، اس کو ستھرا مال دیا جائے۔ بعض لوگ ہاں بولتے ہوں گے، غلط فہمی ہوگی ان کی۔ صلو علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزاد بھائی مائک۔ سید شہزاد خان پر کٹورا سے 1 ماہ کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دنیا میں سید کو عزت دی جاتی ہے، کیا آخرت میں بھی عزت دی جائے گی؟ بالکل دی جائے گی۔ واقعی جو سید ہے تو اس کے لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً پہلے شفاعت ہے، سید شفاعت فرمائیں گے، بہت عزت ہے سیدوں کی۔ اب یہ اب دنیا میں تو جیسے سید ہے، اب اللہ نہ کرے کوئی کفر اس سے نکل گیا، اور ایسا کفر نکل گیا، التزام میں کفر ہو گیا، مرتد ہو گیا معاذ اللہ، اور اس کو تو پتہ نہیں، سمجھے میں سید ہوں، یہ سیادت سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، مزید اس میں یہ ہے کہ حقیقت میں سید کون ہے یہ تو اللہ اور رسول کو پتا۔ مجھے ایک صاحب میں جانتا ہوں ان کو، اب تو کافی سال ہوئے، فوت ہو گئے، سید نہیں تھے وہ، اور ان کو لوگ باپو اور عزت کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں سید نہیں ہوں اور کسی کو بولنا نہیں ہے، وہی عزت ہو رہی ہے۔ تو اب ان کی جو نسلیں چلیں گی خدا بہتر جانے، وہ اپنے آپ کو کیا بولیں گے، سید بولیں گے کیا بولیں گے؟ اللہ ان کو معاف کرے، فوت ہو گئے ہو۔ تو میں نے بھی بہرحال کسی کو بولنے کی ہمت نہیں کی، تو کیسے بولوں یار، کیا مجھے سوچنا نہیں پڑا، ان کو سمجھانے کا بھی سوچنا نہیں پڑا، اتنی پرانی بات ہے کہ ایسا نہیں کرو یار۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह इज्जत देता है और अल्लाह ज़िल्लत देता है। अब आप सादात किराम हैं, अल्लाह ने आपका दर्जा और बुलंद करे, लेकिन जो गैर सादात हैं उनको भी तो इज्जत तो मिलती है ना यार। ये थोड़ी कि गैर सादात को इज्जत मिलती ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह इज्जत दे। तो यूँ सैयद को भी डरना चाहिए कि इल्म इलाही में मेरा हाल क्या है। और ये माहौल में अपना दावत इस्लामी माहौल है, इसमें माशाल्लाह एहतराम है सैयदों का। आमतौर पर बाहर इतना पता भी नहीं है लोगों को इस चीज़ का। सैयद का नस्ब बहुत आला है, शराफत नस्ब पर तकब्बुर हराम है। तो सैयद होकर किसी को ये नहीं समझता कि हकीर समझे किसी को, गैर सैयद को। तो हकीर समझना अपने से किसी को, ये अपनी ज़ात से किसी को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। तकब्बुर किसी के दिल में राय बराबर तकब्बुर हुआ तो जन्नत में नहीं जाएगा, ये भी हदीस में वईद है। तो यूँ हर एक को डरना है, सबके जितना जिसको ज़्यादा रुतबा होगा वो डरेगा ज़्यादा। औलिया किराम को देख लें, इनके खौफ खुदा के वाक़यात ऐसे होते हैं क्या, मतलब हम उन्हीं से रोशनियाँ देते हैं, इतने अल्लाह से डरते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अपने रब से डरने वाले। सईदी, क्या ये बात भी तकब्बुर में आएगी? सादात के घराने में अक्सर खबर क्या सैयदी बोल रहे हैं, मुझे देख ले आप, मैं मेमन हूँ। हमारे तो सरदार है ना सईदी। नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है गालिबन कि वो आपको सैयदी बोलते थे कि आप सैयद हैं, तो मैं हूँ तो मेमन। अब अवामी, उसमें अवामी लैंग्वेज ही होनी चाहिए, या सैयदी। मैं तो सैयद असल हमारे यहाँ पाक को हिंदू में सैयद बोलते हैं, और वैसे अरब दुनिया में सैयद जनाब, सैयद माने जनाब। अरब दुनिया में हबीब बोलते हैं, सैयद को हबीब, शरीफ, ये दो लक़ब है। सैयद अरब दुनिया में अहले अरब, या अब हम लोगों से पाकिस्तानियों से या हिंदुस्तानी उर्दू वालों से सीख लिया हो तो अलग बात है, लेकिन ये लोग बोलते हैं हबीब शरीफ। न कोई नाम के साथ हबीब, जैसे शेख हबीब उमर, दुनिया की मशहूर शख्सियत है। सादात किराम बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है, और इनका अच्छा खासा नाम है, दावत इस्लामी से भी मोहब्बत करते हैं। तो इनका नाम है शेख उमर हबीब, ये सैयद है, हबीब लफ्ज़ है, लफ्ज़ सैयद इनके नाम के साथ नहीं है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ये भी हाथ उठाया होगा ना, हाथ उठाए थे। वहाँ पे कैसे इत्ताद गुजारो यार। जी या सही है। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में ये तो अमीर सुन्नत नहीं बोलेंगे अब आप। हाजी इमरान, एक सैयद साहब, अब वो भी साहिब मज़ार हैं, और ये मतलब बहुत मोहब्बत करते थे, पूरा घराना मोहब्बत करता था। एहतियात नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई सारे ये चैनल पे, मदनी चैनल पे सुने हैं क्या, तो मशहूर घराना है सैयदों का किसी शहर में। ये तशरीफ लाए थे, है सैयद। तो मैंने कहा सरकार अपना मुबारक पाँव मेरे सर पर रख दीजिए, अब आगे कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे। इन्होंने काफी फर्माबरदारी दिखाई होगी। बिल्कुल ये नहीं तात की उन्होंने, जवान थे मतलब। जी सैयद साहब, क्या आप सवाल क्या कर रहे थे? कहाँ से शुरू करेंगे? आप हाल फरमा दें। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सवाल की तरफ हो गया, सवाल इधर उधर हो गया। सैयदी आपकी बारगाह में अर्ज़ है, नॉर्मली सादात घराने में यूँ होता है कि अगर कोई उस्ताद, मसलन मेरे उस्ताद हैं, गैर सैयद हैं, तो मैं उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाऊँ या उस्ताद साहब के जूते सीधे करूँ, एक अदब के लिए मैं यूँ करूँगा, तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो उम्मती हैं, आप उम्मती के जूते क्यों सीधे कर रहे हो? तो यूँ ये जुमला तो कहा जाता नबी कब से बन गया? ये उम्मती, सैयद भी तो उम्मती है। ये कहा जाता है ये सैयद हैं, ये उम्मती हैं, ये कैटेगरी सैयद हैं और ये अच्छा यूँ कहा जाता है, यूँ कहा जाता है। तो क्या ये बात भी तकब्बुर में ही आएगी? नहीं नहीं, इन्हें क्या, यानी आप तो ये सीधा करने की बात करें ना, तो ये तो आजिज़ी है ना। तो सैयद अगर किसी, और आलिम दीन जो होता है, आलिम दीन वो गैर आलिम सैयद से अफजल है, उसका दर्जा बुलंद है, ये भी जहन में रखिएगा। तो अगर वो आलिम दीन की ताज़ीम करता है, या गैर आलिम की भी अगर वो ताज़ीम करता है किसी नेक आदमी की,
सैयद को तो मना नहीं है ना ताज़ीम करना। अब वो अलग बात है कि जिसकी ताज़ीम की जा रही है वो रोक के इनकी सारी यानी आजिज़ी करे। शर्म तो इसको कुछ हम नहीं कह सकते कि कोई गलत तो गैर सैयद को इस मामले में चाहे उसका भले मकाम मर्तबा है, लेकिन अगर वो देखता है कि कोई सैयद इनके लिए इस तरह आजिज़ी का बाजू बिछा रहे हैं, वो तो अपने माशाल्लाह जो कर रहे हैं वो तो एक आला दर्जे का काम है, लेकिन गैर सैयद को सैयद होने की वजह से उनको इस काम से ना करने और उस काम में आगे ना बढ़ने और अपने लिए इस तरह की चीज़ें ना करने के ताल्लुक से उनको ये हाथ जोड़ना चाहिए। सैयद साहब आप मेहरबानी करें, आप तो ना करें। नहीं मानते यार, ये सैयद साहब बैठे हुए हैं, मैं मतलब यानी कि वो टांगे मेरी मजबूरी आपको पता है, तो यूँ रखता हूँ, ये आके यूँ पाँव उठा के भी रख देते हैं मेरा। अब मैं क्या करूँ, ये तो मामूल है इनका, तो अब लाइव समझा रहा हूँ इनको ना। तब मैं क्या करूँ यार, हमें भी तो बरकतें चाहिए। इनकी शफकतें मोहब्बतें, तो ये सादात किराम मोहब्बत का इजहार तो मुझसे करते ही। आपने अभी ये जो इजहार किया ना सैयद वाला, ये इजहार के बारे में कह रहा था, ऐसा इजहार तक जो ना करते हों। अभी आपने इजहार किया यार ये सैयद साहब यूं कर रहे हैं, अब अगले को ये भी नहीं फीलिंग होता कि यार सैयद साहब कर रहे हैं, वो सैयद साहब करे तो क्या हुआ, सैयद साहब कहते हैं सैयद के लिए एक जहन में एक मकाम और मर्तबा अदब और एहतराम बैठा तो है ना। क्या पता यही तस्वुर और यही फीलिंग इनके नाना जान रहमत आलमियान से शफा दिला दे। सुभान अल्लाह। अब इनको आइंदा दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा ना करें। अब रोना शुरू होगा, आपको क्या करना है? अब आप रुला देते हो एक तो सैयदों को, रोने वाली अभी तो रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अच्छा मीनू सुन, अभी जैसे आपने साकिब शाह नहीं करे थे, बोले मैं मेमन हूँ, तो मेमनों में क्या सैयद नहीं है? बाज़ दफ़ा तो कुछ सैयदजादे होते हैं, उनको बोले आप मेमन हैं, तो फिर मेमनों में सैयद हैं जिस तरह मैं मेमन। ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि मेमनी बोलने वाले सादात किराम तो बहुत सारे हैं, इनमें भी हो सकता कोई हो। आप मेमनी गाल करो था घर में और आती है मेमन, वो तो आजकल मेहमान की नवी नस्ल तो उर्दू स्पीकिंग ना सैयद साहब? जी जी उर्दू ही बोलते हैं। हाँ, ये है उर्दू स्पीकिंग, ये मेमनी बोल लेते हैं। नहीं ये नहीं मुराद मेरी कि मेमन हो और सैयद हो। जी ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे मेमन हैं जो सैयद हैं, मेमनी बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँ अपने आप को? आमतौर पे ये होता है कि मैं मेहमान हूँ तो अगला समझ जाता है कि सैयद नहीं है, कि बतौर मेहमान या बतौर उर्दू या इंडियन या मुहाजिर, इसमें सैयद के तौर पे बोला नहीं जाता। सैयद है तो सैयद बोलते हैं, सैयद साहब। बापू बोलते हैं तो बापू भी अब हमने पाबंदी रखी है। पाबंदी क्या समझा है कि लफ्ज़ बापू हमारे यहाँ बोलते हैं, पंजाब और इधर उधर ये भी पता चला था कि समझते नहीं है बापू क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है। ये हिंद का लफ्ज़ है बापू, तो इसलिए फिर हमने कहा कि यार सैयद साहब में सब समझते हैं, हम बापू के बदले सैयद साहब। अब भी बापू बोला जाता है हमारे यहाँ, लेकिन मैं खुद कोशिश करता हूँ बापू ना बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी मेमन हजरात मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप सैयद हैं तो आप कैसे सैयद हैं, तो वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से, हमारा जैसे किसी इलाके से ताल्लुक़ है और उस इलाके में मेमन हजरात ज़्यादा रहते हैं, तो हम उन्हीं के इलाके में बड़े हुए या हमारा उठना बैठना, तो हमने मेमनी सीख ली, तो हम मेमन मशहूर हो गए, जैसे कुतियाना में हैं या किसी और इलाके में, लेकिन हैं हम सैयद। औलाद भी जी नहीं, औलाद तो सारे सैयद ही हैं, मतलब सिलसिला, लेकिन कहते हैं हम मेमन इलाके में रहते हैं तो मेमन भी आ गई हमें, और इसी वजह से हम मशहूर हैं मेमन। यूँ जिनके आप लोग औलाद हैं वो तो अरबी थे, इसमें एक भी अरबी नहीं है, है ना। तो अलग अलग कौम है, जहाँ जहाँ जिस कौम में, तो उसकी अब वो छाप लग गई कि फुला है उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है। इनकी बातों से लगता है कि कई सैयदों ने मेमनी ज़बान को कबूल करने का, मतलब मेमनों को गोया कि ये शहादत मिली हुई कि हमारी ज़बान को कई सैयदों ने कबूल फरमा लिया है, और वो मतलब उनका बैकग्राउंड जो है नस्लन वो मेमन नहीं है, मगर उन मेमनों में रह रहकर उनकी जो लैंग्वेज हो गई ना वो मेमन हो गई है।
تو میمنی اگر سیدوں کے قدموں تک پہنچ گئی تو حضور کیا بات ہے میمنی کی، تو حضور کیا نکل پڑی نا 100 میمنوں کی کی۔ بھی کیا بات ہے یار، کیا کہاں نکل جاتے ہیں آپ۔ سبحان نہیں تو ہر زبان بولی، سب زبان جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ وہ سیدوں کو قدموں میں پہنچ گئی نا، اردو بھی پہنچ گئی اور پنجابی بھی پہنچ گئی، سرائکی بھی پہنچ گئی، یہ ہر قوم میں سید ملیں گے اپنے کو، دنیا بھر میں ملتے ہیں۔ میرا سننے کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سادات میں مختلف سلسلے ہوتے ہیں، کوئی بخاری ہے، کوئی کاظمی، کوئی گیلانی ہے، تو ان میں سے افضل سلسلہ کون سا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو حسنین کریمین کا جو دونوں نجیب الطرفین جس کو بولتے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں سے، اب اس میں تو ظاہر ہے کہ جو ان کے سلسلے میں وہی افضل ہے، اور اب اس میں ویسے افضل و مفضول کا فیصلہ مشکل ہے کہ بخاری تو بخارا سے اگر نسبت ہے تو بخاری ہوا، بخارا ایک جگہ کا نام ہے، اور اسی طرح مطلب کاظمی تو حضرت امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، لیکن یہ سارے سلسلے جا کر امام حسین کے قدموں تک پہنچتے ہیں، امام حسن کے قدموں تک پہنچتے ہیں، اور یہ سب ان کی امی جان بی بی فاطمہ کے قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو یوں مطلب یعنی کہ دیکھ تو پتہ نہیں ہے بھی، لگتا نہیں تھے وہ نجیب الطرفین دونوں طرف سے سید ہو نا، تو اس میں آپ میں سے ہر ایک نجیب الطرفین ہوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ نجیب الطرفین کسی سید نے غیر سید سے نکاح کیا، شادی کی، اب اس سے جو اولاد ہوئی سید تو کہلائی ہے، لیکن ماں سیدہ نہیں ہے۔ سیدی یہ جو گیلانی ہے، کیا ان کو نجیب الطرفین کہہ سکیں گے ہم؟ اب گیلان میں کیا مطلب غیر سید سے نکاح کا کوئی دستور نہیں ہے سلسلہ، یا لقب بعض وقت ویسے عقیدت میں لوگ گیلانی رکھ لیتے ہیں، یا گیلانی غالباً، پھر یہ چلا سلسلہ۔ گیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اب میں علیہ سے سمجھ گیا، لیکن غوث پاک کے اولاد میں سے ہے بھی، مسئلہ تو یہ نا، ویسے ہی گیلانی رکھ دیتے ہیں، وہ شامی رکھ دیتے ہیں اپنا لقب، بغدادی کہلاتے ہیں یہ لوگ، اب تو خالی ویسے اپنے طور پہ لوگ شوق سے رکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ تاری موریشس سے، سوال یہ تھا کہ اسلام میں کاسٹ سسٹم کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ذات پات کو افضلیت دینا، فلاں ذات افضل، جس طرح دیگر مذاہب میں ہے، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں، وسوسہ بھی آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں یہ سسٹم سید کو افضل، سید کو برتری دینا، تو اسلام میں تو اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں تو اسلام میں کہاں ڈسکریج کیا گیا، دلیل تو اس کے ذمہ ہے نا جو ایسا کہہ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ فطری تقاضا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میری اولاد ہے، اب اس سے مطلب آپ مجبور ہیں، آپ کا دل مجبور ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، یار فلاں کا بیٹا ہے، یار یہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ اس سے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو سیدوں کے تو فضائل سے حدیث مالا مال ہیں، اہل بیت کے فضائل سے، تو ان کو کیوں مطلب فضیلت نہیں دی جائے گی؟ جب ایک نبی پر دوسرے نبی کو فضیلت ہے، وہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں یہ تو اس طرح مطلب یہ کہ صحابہ کرام میں بھی افضل بھی ہیں صحابہ، مفضول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح مطلب اولیاء کرام میں بھی افضل مفضول، غوث پاک سب سے افضل اولیاء کرام میں ہے نا، تو اس طرح مطلب تو سب میں یہ تو کیٹیگریز ہیں، تو اس طرح مطلب یہ امت میں جو اہل رسول ہے وہ ظاہر ہے کہ افضل تو ہے، مطلب اس کو شریعت کی روح سے، حدیثوں کی روح سے ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب سوال یہ کہ ڈسکریج کیا گیا ہے، یعنی کہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے نسب پر تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں، جیسے سورہ حجرات کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ قبائل وغیرہ جو بنائے گئے یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، تو اس پر فخر و تکبر سے جیسے، ورنہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنے جو نسب کو بیان کیا ہے، پھر ہاشمی باقاعدہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ تو ایک چیزیں ہمیشہ دنیا میں چلتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ تعارف کے لیے ہیں، تو اسلام تو یہ باقاعدہ یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، یہ تو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اپنے نسب پر یا اپنے کسی خاندان پر یا اپنی کسی بھی اس طرح کے مقام پر اس پر تکبر نہ کرو، یہ تمہارے پہچانوں کے لیے ساری چیزیں قبائل وغیرہ جو بنائے گئے ہیں۔ پھر آگے بیان کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید عاطف علی قادری مدنی چینل کراچی سے۔ سوال یہ تھا کہ بعض اوقات دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہوا بھی ایک دو دفعہ جب یہاں پہ آپ نے اتنی سعادت کرام کی خصوصیت بیان کی کہ دل میں خوشی محسوس ہوئی،
तकब्बुर नहीं, अब वो लगा कि तकब्बुर तो नहीं कर रहे हम, ये किसी को हकीर भी नहीं जान रहे, एक दिल में करके हम कहीं और भी पैदा हो सकते थे, हम इस खानदान में पैदा हुए, मकाम शुक्र है, शुक्र अली, तो वो दिल में खुशी महसूस करना, तो इसको हम तकब्बुर इसको थोड़ी बोलते हैं। मतलब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ, तो दिल में ख्याल भी आया और एक नहीं, अच्छी बात है कि आदमी डरे, लेकिन खुशी तो अब इसमें इख्तियार नहीं हो, कोई हरज भी नहीं इसमें, खुशी था। अगर होती है तो। पूछा भी वैसे मुझे ऐसा हुआ कि पता नहीं कहीं गलती तो नहीं कर बैठा मैं कुछ ऐसी। खुशी होना और चीज़ है, किसी को हकीर अपने से जानना ये और चीज़ है। नहीं, हकीर तो नहीं, खुशी महसूस हुई तो माशाअल्लाह, आप खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। या अल्लाह पाक पापा जाने की माँ, आमीन। या अल्लाह पाक पापा जाने को मीठा मीठा मक्का और मदीना देखा, आमीन। या अल्लाह पाक पापा जाने हज पे जाएं, आमीन। पापा जाने मेरे साथ सवाल है कि बचपन में जब आप छोटे थे तो मदीने शरीफ मक्का शरीफ गए थे? मक्के मदीने नहीं गया था, बचपन में नहीं गया। ये बचपन में आदमी छोटा होता है। फिर कब गए थे? अच्छा, बचपन में आदमी छोटा होता है। ये छोटा से तो बचपन कहलाए। हाँ, हमें ये छोटा बचपन में आदमी छोटा होता है। जज़ाकल्लाह। अब मैं बेटे बचपन में तो फिर कब गए थे? अफसोस, फिर कब गए भैया बताओ? बाल बच्चे वाला हो गया फिर गया था। हमें भी ले चल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजिर मदीना की दुआ से नवाजते हैं अपने साथ। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको मीठा मदीना, सबको हाजी बनाए। अभी पिछले दिनों रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला रहा मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो रमज़ान से पहले जो रिकॉर्डिंग्स हुई उसमें रमज़ान की रिकॉर्डिंग हो रही है। उसमें कुछ लोग इस तरह जुमला बोल देते हैं कि देखें आज जुमे का दिन है, वो जुमे की रिकॉर्डिंग हो रही है, पीर के दिन रिकॉर्डिंग हो रही है, हम जुमे का दिन कह रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी जुमला निकला कि देखें मैं तो रमज़ान का महीना है और मैं रोज़े से हूँ इस वक्त, और मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो उलमा कराम को भी इस तरह की रिकॉर्डिंग के दौरान ज़ाहिर से वो रमज़ान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या मोहताज जुमले बोलने चाहिए? अभी ईद मुबारक का हम लोगों ने, जी जी, तो ये तो इसमें तो ये होता है कि अंडरस्टूड भी होता है कि ईद से पहले ही गालिबा ने बताया भी जाता ना, मेरे को वजाहत हो जाए ना कि भाई ये रमज़ान शरीफ से पहले रमज़ान में ये चलेगा, इसलिए बात जुमले ऐसे हैं कि जो मतलब आज के लिए दुरुस्त नहीं, लेकिन रमज़ान के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस तरह कुछ ऐसे जुमले हो जाए ना, तो जैसे हम तमाम ज़रूरतन मिक्सिंग जो करते हैं मुख्तलिफ मनाजिर की, मुख्तलिफ आवाज़ों की मिक्सिंग, ये बहुत शुरू में आपने दिया हुआ था। जी हाँ, जुमले अच्छा, शायद इस वजह से बोलते हैं अगर बता देंगे तो शायद वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से यार अब हमारा तो लिखा हुआ जाता है कि हमने ये जो बयान हो रहा है टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर हो रहा है। यहाँ तक बता दिया हमने, यहाँ तक तो बता दिया माशाल्लाह। अच्छा से क्या फर्क पड़ा? हाँ, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? जबरदस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब ये देख कर बोलने हल मुबल्लिग को बोले तो अच्छा है यार, बोल देना कि मैं ये देख कर बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो फटाफट ये पढ़ रहा है बोल रहा है आदमी को, यार क्या है यार, बड़े से बड़ा अल्लामा भी इसको नहीं पहुँच सकता, इतना इसका इल्म है कि बोले जा रहा है, और मुश्किल मज़ामिन बोले जा रहा है, उस स्क्रीन पर नहीं पता होता, जिसको पता है फील्ड में देख के पढ़ रहा है। मैं आपको ज़रूर बताऊं, पहले क्या था ये चैनलों की दुनिया में, बाहर के चैनलों में, कि कैमरा में नज़र नहीं आना चाहिए। अब हमारे यहाँ ये भी चलता रहा, हमें कहा यार मसला क्या है, कैमरा में नज़र आ जाता है, ये कैमरे नज़र आ जाते हैं। मेरे से ये अब इतनी मतलब ढकी चुपी, मैंने कहा भाई दुनिया को पता है स्क्रीन पर जो देख रही है कि भाई कैमरे के ज़रिए हम आ रहे हैं, कैमरा नज़र नहीं आना चाहिए, माइक लगाने वाला नज़र नहीं आना चाहिए। मैं कहा आ जाएगा नज़र तो कौन सा मतलब आदमी चैनल बंद कर देगा। और जब से ये हमने बनाया ना, डायरेक्टर भी खुश हो गया, यार अब इतना टेंशन होता था ये कैमरा लो, कैमरा में नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद लगता है शायद मुझे पता चला है तो दूसरे चैनलों को समझ आ गया कैमरा में नज़र आने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो कैमरा में रोते हुए दिखाएं, वाह कि देखो ये रिकॉर्ड, मतलब हालांकि कैमरा मैन का रोना जो है ना, क्योंकि उसका ध्यान आपकी गुफ्तगू में नहीं है, उसका ध्यान तो आपको लेने में है,
मगर वो कैसी गुफ्तगू है कि लेते लेते इसके कान गुफ्तगू में चले गए, उसने रोना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे वाकयात एक नहीं है, नहीं, कई दफा देखा है माशाअल्लाह। और आपको शुरू में किसी ने आके समझाया था कि यार पफिंग, आप पफिंग तो आपने बोला था कि ये पफिंग करते हैं कुछ तो बोला पसीना आ जाता है। तो क्या होता है पसीना आ जाता है? हम तो लाखों के इज्तिमा में मुल्तान में हम लोग बयान करते हैं तो पसीना तो आता है, कोई उठ के जाता तो नहीं। ये बोला नहीं बोला आपने वो पसीना देखकर तो ये चैनल पे क्यों लोग चले जाएंगे? हम तो नहीं करते पफिंग, नहीं करते तो नहीं करते, हमने कभी नहीं की पफिंग, नहीं इन्होंने की ना मैंने की, हमारे है ही नहीं पफिंग, चैनल भी नहीं, सिस्टम ही चैनल में नहीं, जरूरत ही नहीं इसकी। लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या करते हैं पफिंग, सुना मर्द को औरतें करती हैं, चैनल ये भी है, सुना है मैंने, इसी फील्ड के आदमी से सुना है। अल्लाह बेहतर जाने वाला, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते यार। मैं तो मेरा बात पर बात निकली है, मेरा यार वो सीधा साधा इमामा पास करवा दो यार, ये मतलब मुझे बंधवाना पड़ता है, ऐसा बांधना आता नहीं मुझे। पहले मैं इमामा खुद ही बांधा कर, जैसे रिजवान ने बांधा है, इसको कोई नहीं बोलता, मेरा वो इसको बोलेंगे उसको यार इसका इमामा यूं तो ये नजर आ रहा है, थोड़ा यूं कर लो तो यूं मेरे पीछे यूं लगे रहते हैं। तो अब मैं बोलता मेरा इमामा ये कौम देख रही है, ये इलियास कादरी को देख रही है। सुभान अल्लाह। असल में बाबा ऐसे बहुत मोहब्बत करने वाले जो दोनों देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। ये भी शामिल है। मैं आदत खराब हो गई है, मैं अपने घर में तो अपने तौर पे इमाम है, मैं रखता हूँ, बांध भी लेता हूँ, लेकिन ये बंधवाता हूँ। इसको पसंद किया गया, पसंद तो वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पसंद किया गया है, आप समझ, बहुत कुछ पसंद किया गया, ठीक है ना। इमाम अपनी जगह पर इमाम में से, इमाम की बंदिश से ही कोई वकार थोड़ी है। ए अमीरे अहले सुन्नत शुक्रिया सद शुक्रिया, ए अमीरे अहले सुन्नत शुक्रिया सद शुक्रिया, आपके सदक़े है इज्जत शुक्रिया सद शुक्रिया शुक्रिया, ए अमीरे अहले सुन्नत शुक्रिया सद शुक्रिया। कभी से खड़े हुए सब अर्ज़ ये करनी थी कि क्या सैयद को बतौर आजिज़ी या तकब्बुर से बचने के लिए नस्ब बदल के बताना जायज़ है कि वो अपने आप को कोई और नस्ब बताए या कुरैशी कह दे? अगर कुरैशी है तो कुरैशी तो होते हैं, तो कुरैशी कहने में तो अर्ज नहीं है, जबकि हो कुरैशी, सैयद कुरैशी तो होता ही है ना, सैयद कुरैशी ही होता है, कुरैशी ही होता है यूं। अच्छा, अब मसला ये कि लफ्ज़ सैयद नाम के आगे बोलना क्या ज़रूरी है? मैंने इक्का दुक्का सैयद साहब देखे ऐसे कि मैंने नाम कहा आप सैयद सुना था मैंने, मैं सैयद, हम तो मैंने उससे आजिज़ी करने लगे थे सैयद साहब, लेकिन तस्लीम नहीं किया। तो खैर, तो इस तरह अगर अपने नाम के आगे सैयद नहीं बोले, शाह नहीं बोले, तो वह ये नफ्स भी तो लगा हुआ है अरबी से, आज चुमे तो मज़ा कैसा आता है। एक मैं चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि अपने नाम के आगे सैयद बोले, हमको तो मज़ा आता है, हम एहतराम करेंगे, लेकिन खुद जिसका एहतराम किया गया वो जो परवास कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, बादलों में पहुँच रहा है, इसके लिए तो खतरनाक ही है। अंडरस्टूड है, फूलना तो नुकसान दे ना। दूसरा ये सवाल अर्ज़ करना था कि हमारे एक दोस्त सैयद साहब हरम शरीफ में उन्हें कोई बुखारी सिलसिले कोई साहब मिले और उन्होंने ये एतराज़ किया, वो जो हमारे दोस्त सैयद साहब हैं वो किसी गैर सैयद से मुरीद थे, तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि सैयद गैर सैयद का मुरीद नहीं होना चाहिए, क्या ये उनका ये कहना दुरुस्त है? गलत, सैयद शर्त नहीं है, ये तो बड़े बड़े मशाइख आला हज़रत कहाँ सैयद थे, लेकिन बाज़ खुलफा भी आपके सैयद हैं, बेशुमार जो हैं वो मुरीदीन आपके सैयद। तो इस तरह मतलब ये कि और भी मशाइख जो सदर शरिया मौलाना हमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये कहाँ सैयद थे। जुनैद बगदादी, बाबा बुल्ले शाह का तो मशहूर वाक़या है, बाबा बुल्ले शाह सैयद हैं, इनके पीर साहब गैर सैयद थे, तो इनको किसी ने वसवसा डाला और बोला कि तुम्हारे पीर साहब तो सैयद है नहीं, कहाँ गैर सैयद के मुरीद बन गए। तो इनको ये वसवसा आ गया और फिर इनको एहसास हो गया कि रॉन्ग नंबर लग गया। तो इन्होंने फिर मतलब ये जिस तरह मनाया कि जिस तरह भी इन्होंने अपने मुर्शिद को शायद पता चल गया था, तो मनाया,
मेरी भूल हो गई, आप मेरे पीरो मुर्शिद हैं। तो गैर सैयद सैयद कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब भी सैयद नहीं थे, बेशुमार सादात किराम इनके मुरीद नहीं। तो बहुत सारे, अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के एक से एक सैयद मुरीद मिलेंगे, तो ये है ही नहीं ऐसा। ये शुरू में मेरे साथ इम्तिहान हुआ था, जब शुरू में जब दावत इस्लामी ना, तो बाद लोगों ने बाकायदा इसमें कुछ तरकीब की थी कि ये मतलब सैयद नहीं है, कादरी कहता है अपने आप को, पीरी मुरीदी करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहमद अली शाह मेरा नाम है जी, जिला कसूर कंगनपुर का रहने वाला हूँ। ख्वाहिश रखता हूँ कि आपके सामने नात शरीफ पेश की है। दरूद पाक पढ़ रहे साहब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ए कलाम आला हज़रत जी घट पढ़िया जाता है, मैं वो पढ़ना चाहना। बंदा मिलने को करे दे हज़रत का दिल गया, लम्हाए बातिन में घूमने जलवाए ज़ाहिर गया। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफला तो रज़ा अव्वल गया कर गया। मजा आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अजहर साहब का कि सदात में तैयार कर देने से। साबित चुप जाओ, माशाअल्लाह, हाथ तो चुपो। सही साबित सरकार हाथ चुम दीजिए, माशाअल्लाह। जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा। अल्लाह अल्लाह। कातिबीन वही, जो वही नाजिल होती थी उसको लिखते थे, उन साहबा को कातिब कहते, कातिब वही। तो कातिबीन वही जमा, कातिबीन वही साहबा किराम के नाम सुनाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम इनका पढ़ा है, और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी कुछ रह गए बाकी, अभी बाकी। कातिबीन वही साहबा किराम के मुबारक नाम ये हैं। नंबर एक, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, नंबर 5 हज़रत सैयदना उबई बिन काब, नंबर 6 हज़रत सैयदना ज़ैद, नंबर 7 सैयदना अमीर मुआविया, नंबर 8 हज़रत सैयदना हंज़ला बिन रबी, नंबर 9 हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद बिन आस, हज़रत सैयदना अयान बिन सईद, नंबर 11 हज़रत सैयदना अला बिन हज़रमी रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मजीद जिसको जवाब आएगा वो हाथ बुलंद। कुरान करीम में किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जैतून के दरख्त। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। सबसे पहले किस खातून के कान छेदे गए, कानों में सुराख किए गए? हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। जन्नतियों की जन्नत में सबसे पहली ग़िज़ा क्या होगी? मछली का किनारा। मछली का किनारा, मछली के यो जिगर, मछली का जिगर, मछली का जिगर है। देख लो, दो हो गया, तीसरा मछली का जिगर का किनारा खिलाया जाए। इनको पूछते जिगर होता क्या है? जिगर किस तरह होता है? जिगर क्या होता है? वह एक तो जिगर के माना बता रहे, मछली के पाए। जन्नत में सबसे पहले मछली के पाए खिलाए जाएंगे। यहाँ किसी ने खाई नहीं ना पाए मछली के। नहीं तो भाई आप में से किसी ने मछली के पाए नहीं खाए अभी तक? हाथ खड़ा करें। अगर बताइए जिसने मछली के, नहीं सही है, जिसने मछली के, अगर मछली के पाए खाए तो आपको मसला क्या बाबू? नहीं, यूं हाथ यूं खड़ा करके यूं हो रहा है। जिसने मछली के पाए खाए बताया मेरे सुन्नत को। मछली के पाए होते कितने?
ये कोई बताएगा? 3 भाई अगर पाए नहीं होते तो तैरती किससे है? कितने 4 होते हैं? होते हैं। पर होते हैं। नहीं, पाए 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 किसको बोलते हैं? नहीं, मछली के पाए किसी ने देखे हैं? देखे भी नहीं है। आपने देखे ना? होते ही नहीं है। मछली के पाए होते ही नहीं है। मछली के पर होते हैं जी, मछली के पर होते हैं, मछली उड़ती है इससे पानी में। नहीं नहीं, नहीं, मछली के पाए होते ही नहीं। सैयद साहब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जिगर के माना आते नहीं हुए कि जिगर के माना क्या है? जिगर हमारा रह गया। किस किस को मालूम है जिगर के माना? क्या पता? नहीं पता। वो सैयद साहब जिगर कह रहे हैं, जिगर के माना ही नहीं जानते लोग। आप जिगर लीवर को बोलते हैं इंग्लिश में। लीवर। अच्छा सही साहब, आपने जिगर बोला है तो आपको आसान बोलो ना लफ्ज। जिगर किसको बोलते हैं? जिगर किसको बोलते हैं? कलेजी को बोल। हाँ, कलेजी में समझते, जिगर में। जिगर लफ्ज बड़ा मशहूर है लेकिन समझ नहीं आती जिगर होता क्या लोगों को। तो ये जिगर माने कलेजी, लीवर। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे 3 सहाबा किराम के नाम बताइए जो अपनी कुन्नियत से मशहूर हैं। जी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अपनी कुन्नियत से मशहूर हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह, ये भी कुन्नियत से मशहूर है। सर, कुन्नियत रखना भी सुन्नत है और पहले कुन्नियत का बड़ा मैंने कहा रवाज था, कुन्नियत से पुकारा भी जाता था। अब वो रवाज रहा नहीं। मुझे बहुत पहले किसी ने कहा कि यार कुन्नियत रखना तो सुन्नत है, तुमने अपनी कुन्नियत ही नहीं रखी। तो इस पर मैंने सुन्नत समझकर अबू बिलाल अपनी कुन्नियत रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस शेर का पहला मिसरा बताइए। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिन को नहीं है, दिल 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 को भी आराम हो ही जाएगा। दिन की बारी नहीं आएगी। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त है। आज उससे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? जन्नतुल माला में। जन्नतुल माला में। अच्छा ये बताइए, जन्नतुल माला मदीने के कौन से महल्ले में है? कौन बताएगा? ये हट्टी है इसमें थोड़ी। की बारी भी नहीं। ये बुजुर्ग के छाटी है इनको। ये मक्के में है, मदीने में नहीं है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। भाई ये सादात किराम को दो, जिन्होंने हजरत को भी दो हाथ चूमना, सैयदों के हाथ चुमा करो। चुम लो जुनेद, आप भी बेटा हाथ चूमिएगा। जाओ उन सैयद साहब को दिया। माशा। अच्छा 2 मिल गई। कबूल फरमा। सीधे हाथ से हाथ चूमो जुनेद। सुचको नहीं फिर क्या अपना हाथ चूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक कहाँ है? आपको पता है लगता है। माशाअल्लाह। छोटे बच्चे इनसे कौन है? माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने में जन्नतुल बकी में। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अच्छा आप थोड़ा वो सवाल है एक लिखा हुआ है, तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए। समंदर समुंदर दोनों में दुरुस्त क्या है? समंदर दुरुस्त है या समुंदर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बाकी हाथ आप सैयद नहीं है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समंदर समुंदर। दोनों हो गए। पहले क्या बोला?
समंदर। आप किससे आपको इत्तेफाक समंदर। समंदर से इत्तेफाक है? अच्छा, नहीं ठीक है। और कोई नहीं, अभी मैं हाना तो नहीं बोल रहा ना, दुरुस्त है या नहीं है। और कोई? समुंदर। अब दोनों कोई तो सही होगा ना। समुंदर। 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 समुंदर जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समंदर हमारे कहते समंदर ही है, लेकिन असल तलफ़्फ़ुज़ है समुंदर। समंदर उसको बोलते हैं कि ये जो आग पूछते हैं ना, इनकी सदियों तक ये आग जलती रहती है, बुझने नहीं देते। इसमें एक कीड़ा पैदा होता है आग में, उसको समंदर बोलते हैं। ये लुग़त पे लिखा हुआ है इस तरह का कि बहुत अरसे आग जलती है तो फिर ये कीड़ा पैदा होता है। अल्लाह की शान है, आग में कीड़ा। हाथ चूमेगे नहीं जुनेद? सबके चूम के है। हाँ, दुआओं से भी नवाज दें सबको, दुआओं से भी नवाज दें। अमीर सुन्नत दुआ की अर्ज करें। मुलाकात। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने मनाई खुशियाँ। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने मनाई खुशियाँ। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक। सबने चेहरों पे है क्या खूब सजाई खुशियाँ, सबने चेहरों पे है क्या खूब सजाई खुशियाँ, सबने चेहरों पे है क्या खूब सजाई खुशियाँ। दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ, दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने मनाई खुशियाँ। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक। जिस किसी ने भी खुदा के लिए रोजे रखे, जिस किसी ने भी खुदा के लिए रोजे रखे, जिस किसी ने भी खुदा के लिए रोजे रखे, उसने अल्लाह से भरपूर है पाई खुशियाँ, उसने अल्लाह से भरपूर है पाई खुशियाँ। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने मनाई खुशियाँ। सैयदजादों की ईद, अमीर अहले सुन्नत के साथ, ईद की खुशियाँ है मुर्शिद है साथ, खुशियों की भी हो गई ईद आज।